Assalamu everyone. I think we are good to start today's session. आज का सेशन स्टार्ट करते हैं यहाँ पे. Okay, फातिमा बेटा, you are new one. इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक से हम लोग अपनी हाइब्रिड क्लासेस भी स्टार्ट करेंगे ऑन कैंपस. So meanwhile, what you need to do, बाकी बच्चे जितनी देर में ज्वाइन करते हैं हमारे पास. So I think you are having the access of this portal now. So आपको क्या करना है, जितने चैप्टर्स हम लोगों ने अभी तक कवर अप कर लिए, लाइक this is your O level, this is your course. So number system, just click on this. So जितने भी आपके recorded lectures हैं, they are available over here. So इनकी वीडियोस को go through करेगा kindly, और जो क्लास के lectures हैं, they are available right over here. ठीक है. So chapter by chapter आप आगे move करते रहें. After this you are having data transmission, and after data transmission then you will be having data formats as well. So data formats मैंने अभी अपलोड नहीं करा है, लेकिन आज रात तक मैं सारे lectures data formats के भी अपलोड कर दूंगा. So after this we are going to start the next chapter. So meanwhile जितना आपका अभी तक हमारे चैप्टर्स कवर अप हो चुके हैं, so you need to cover these chapters up. ठीक है. तो ये सारे चैप्टर्स आप कवर अप कर लेगा meanwhile. ठीक है. So इसके अलावा अच्छा, फिर हम लोग जब ऑन कैंपस होंगे तो आपके जो क्वेश्चंस होंगे, कोई क्वेरीज होंगी, तो वी आर गोइंग टू डील विद दैट एज वेल. फिर हम लोग वो खुद ऑन स्पॉट, अगर आपके पास रिकॉर्डेड लेक्चर में कोई प्रॉब्लम है तो आप फिर हम लोग वन टू वन डिस्कस कर लेंगे. सो लेट्स सी व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी टुडे. आज हम लोग क्या पढ़ेंगे. This is ASTC Bhadrabad section. Okay. So currently we are doing the data formats chapter, and in this chapter we talked about the text and numbers, how text and numbers are stored in a computer system. Then we talked about the images, and after images हम लोगों ने यहाँ पे बात करी थी about the sampling as well. So when जब मैं फॉर एग्जाम्पल अभी बोल रहा हूँ तो द साउंड इज एक्चुअली इन एनालॉग फॉर्म, और हमें इस साउंड को कन्वर्ट करना होता है इनटू डिजिटल फॉर्मेट, बिकॉज कंप्यूटर सिर्फ एक ही लैंग्वेज हमारे पास अंडरस्टैंड करता है, एंड दैट लैंग्वेज इज डिजिटल लैंग्वेज. So we need to convert this analog sound into digital. So how we convert an analog sound into digital? The phenomena that we use is called sampling. So sampling क्या करता है बच्चों, आपके पास यहाँ पे sampling is actually process in which we convert analog sound into digital. So that's the main phenomena of sampling. Acha, if you have any questions, any queries, just write down on Mac chat option. So मेरे पास आपके questions आ जाएंगे. ठीक है. तो कोई questions हो during the lecture तो you can write on Mac chat बच्चे. तो sampling मैंने आप लोगों को बताई. sampling क्या होती है? Sampling is the process in which we convert analog sound into digital one. And one more thing that you should know, अगर आपके पास क्या होता है, sampling को अगर आप increase करें, अगर आप सैम्पलिंग को थोड़ा इंक्रीज करें तो आपकी जो साउंड की क्वालिटी होगी दैट विल आल्सो इंक्रीज. एंड सिमिलरली आपका जो फाइल साइज होगा साउंड का, फाइल साइज विल आल्सो इंक्रीज. सो दे ऑल रन इन पैरेलल. या आपके पास सारी चीजें क्या होती है, पैरेलल के अंदर चल रही होती है,
तो अगर आप सैम्पलिंग को बढ़ाएंगे तो क्वालिटी इंक्रीज होगी एंड पैरेलल के अंदर आपका फाइल साइज भी जो होगा वो इंक्रीज होगा. So that's all that we should know about the sound. After sound, another format, a very important format. This format is called MIDI. I hope शायद आप लोगों ने कभी पढ़ा हो ये format. This is called musical instrument digital interface. So this is called musical instrument बच्चों digital interface, MIDI. सर अब MIDI क्या होता है हमारे पास? Let's see. Let's assume that this is one of the computers. ये आपका एक कंप्यूटर था. This was your system. This was your PC, and you were having an electronic guitar. Assume कर लेगा ये गिटार है. I know my drawing is too good. तो assume कर लेगा this is the electronic guitar. ठीक है, मैं लिख भी देता हूँ. इलेक्ट्रॉनिक है ये आपके पास. नो बच्चों, आप लोग को पता है electronic guitar is actually a device. It's a device, and you need to connect this device into a system. आपको एक सिस्टम के साथ क्या करना है? इस डिवाइस को कनेक्ट करवाना है. सो कैन एनीवन नेम के आपके पास क्या चीज रिक्वायर्ड होती है whenever two devices communicate to each other? जब भी दो डिवाइसेस आपस में बात करती हैं तो एक चीज आपके पास हमेशा कंपलसरी होती है. एक चीज के बगैर आपके पास दो डिवाइसेस आपस में कम्युनिकेट कर ही नहीं सकती. एनीवन कैन नेम दैट स्टफ. चलिए मैं हिंट देता हूं आप लोगों को. द हिंट इज, इस चीज का नाम आपके पास पी से आता है. सो बच्चों, द स्टफ इज कॉल्ड, द थिंग इज कॉल्ड प्रोटोकॉल. सो व्हेनेवर, जब भी बच्चों दो डिवाइसेस को आपस में कम्युनिकेट करवाना है तो वी ऑलवेज नीड अ प्रोटोकॉल. विदाउट प्रोटोकॉल दो डिवाइसेस आपस में बात नहीं कर सकती. सो व्हेन इट कम्स टू एन इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, जब हम लोग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स की बात करते हैं तो बच्चों एक इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को सिस्टम के साथ कनेक्ट करवाने के लिए हम एक प्रोटोकॉल यूज करते हैं, एंड दैट प्रोटोकॉल इज कॉल्ड MIDI. सो ये MIDI क्या है? ये दो तरह से काम करता है. एक, इसका पहला फंक्शन क्या है? इट्स अ प्रोटोकॉल दैट इज यूज्ड टू कनेक्ट इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स टू योर सिस्टम. एंड यहाँ पर मैं प्रोटोकॉल की डेफिनेशन भी आप लोगों को लिखवा दूं, बिकॉज जब आप लोग रिवीजन करने बैठेंगे so you should know the definition for the protocol as well. So protocol क्या होता है? Set of rules or certificates used by two systems whenever they want to communicate. So जब भी दो systems को आपस में बात करनी होती है तो you always need a protocol. आपको हमेशा क्या चाहिए होता है? You always need a protocol. Without protocol दो सिस्टम आपस में बात नहीं कर सकते. ठीक है? तो अच्छा बच्चों, ये एक प्रोटोकॉल भी है MIDI, और MIDI एक म्यूजिक स्टोर करने का फॉर्मेट भी है. लाइक आप लोग को पता है एक म्यूजिक स्टोर करने का, एक ऑडियो फॉर्मेट स्टोर करने का वहां पे एक फॉर्मेट कहलाता है, दैट इज MP3. तो MP3 भी एक फॉर्मेट है. तो इसी तरह
आपके पास MIDI एक म्यूजिक स्टोर करने का फॉर्मेट दिया आपके पास, ठीक है। सो मैंने अब यहाँ पे बच्चों कुछ MIDI के बारे में आप लोग को बातें लिखवाना स्टार्ट करी। लेट्स स्टार्ट। इट्स अ प्रोटोकॉल as well as file, या थोड़ा सा और बेहतर करने से ऑडियो फाइल स्टोरिंग फॉर्मेट। अब देखिए हर फाइल को स्टोर करने के लिए आपके फॉर्मेट के अंदर आपके पास उसका एक्सटेंशन आता है। तो द एक्सटेंशन फॉर MIDI इज .mid. So .mid is the extension for MIDI files. Whenever you store MIDI file, the extension will be .mid. Further, you should know this format is industry standard and of course music industry. अब आप लोगों ने देखा होगा बच्चों, कभी कभार ऑडियो रिकॉर्डिंग्स हो रही होती हैं आपके पास, लाइक अगर मैं दिखाऊं आप लोग को कोई ऑडियो रिकॉर्ड या रिकॉर्डिंग रूम्स, यू कैन सी। आप लोगों ने देखा होगा फिल्म वगैरह में, आप लोगों ने जर्नली देखा होगा इस तरह के आपके पास स्टेशन होते हैं, इस तरह की आपके पास डिवाइसेस होती हैं, लाइक यू कैन सी दिस वन एज वेल। सो ये यहाँ पे जो इन रूम्स में बच्चों जो आपके पास ऑडियो सेव हो रही होती है, इन रूम्स के अंदर भी आपके पास जो फॉर्मेट होता है दैट फॉर्मेट इज .mid। तो यहाँ पे भी आपके पास जो फॉर्मेट स्टोर हो रहा होता है दैट फॉर्मेट इज MID फॉर्मेट के अंदर आपके पास स्टोर हो रहा होता है। दैट्स व्हाई इसको इंडस्ट्री का स्टैंडर्ड बोलते हैं हम लोग। तो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि एक इंडस्ट्री स्टैंडर्ड है आपके पास ओवर हियर। फर्दर मूविंग फॉरवर्ड, आगे बढ़ते हैं बच्चों। यहाँ पे एक और चीज, when we are saving the data in MIDI files, so data is directly stored in बाइनरी फॉर्मेट। तो डायरेक्टली डेटा आपके पास MIDI फॉर्मेट के अंदर क्या हो रहा होता है बच्चों, बाइनरी फॉर्मेट के अंदर स्टोर हो रहा होता है। तो जब बाइनरी फॉर्मेट में स्टोर हो रहा होता है तो आपका जो फाइल साइज होता है, फाइल साइज is relatively smaller as compared to other म्यूजिकल या म्यूजिक फॉर्मेट्स। ठीक है बच्चों, एंड वन मोर थिंग दैट यू शुड नो अबाउट MIDI, इसके अंदर आपके पास दो बाइट्स होती हैं।
One byte is called pitch byte and the other byte is called velocity byte. So we are having two bytes. One byte is called pitch byte and the other byte is called the velocity byte in MIDI format. अब ये bytes क्या डिफाइन करती हैं यहाँ पे हमारे पास, ये bytes डिफाइन करती हैं हमारे पास कि pitch byte डिफाइन करती है how loud to play. जो आप म्यूजिक अपना प्ले करेंगे वो कितना लाउड आप लोगों को प्ले करना है, हाउ लाउड टू प्ले. एंड वेलोसिटी बाइट आपको बताती है विच नोट्स टू प्ले, कौन से नोट्स आपने प्ले करने. तो वेलोसिटी बाइट आपको ये डिफाइन करती है कि कौन से नोट्स आप लोग को प्ले करने हैं. एंड पिच बाइट क्या डिफाइन करती है कि कितना लाउड आप लोग को प्ले करना है. एंड द लास्ट थिंग दैट यू शुड नो अबाउट MIDI फाइल्स, एडिटिंग of sound is easy because data is already in binary format. सो बच्चों हमारे पास यहाँ पे ये सारे पॉइंट्स मैंने आप लोग को बताए अबाउट MIDI. और इस साल के लिए आपके पास MIDI फॉर्मेट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सर आप ऐसा क्यों बोलने की ये इंपॉर्टेंट क्यों है, बिकॉज बच्चों लास्ट 2 ईयर्स से MIDI का कोई क्वेश्चन एग्जाम के अंदर नहीं आया. सो आई थिंक दिस इज द बेस्ट ईयर. आपका एग्जामिनर यहाँ पे आपको एक अच्छा क्वेश्चन यहाँ पे दे सकता है ऑन MIDI. एंड easily examiner can ask you around 5 to 6 मार्क्स का क्वेश्चन आप लोगों को दे सकता है कि एक्सप्लेन द MIDI फॉर्मेट और XYZ. तो आप लोग को यहाँ पे मल्टीपल क्वेश्चन आप लोग के MIDI के आ सकते हैं. ओके, नाउ मूविंग फॉरवर्ड आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा. और अगर आप लोग के यहाँ तक कोई क्वेश्चंस हैं तो फील फ्री टू आस्क. कोई भी आप लोगों का क्वेश्चन है, कोई क्वारीज हैं तो राइट डाउन ऑन चैट ऑप्शन, एल्स राइट डाउन क्लियर सो दैट आई कैन मूव फॉरवर्ड बच्चों. अच्छा, वन मोर थिंग, एक और बात आप लोगों को पता होनी चाहिए यहाँ पे. देखिए एडिटिंग क्यों बेहतर है MIDI के अंदर, व्हाई एडिटिंग इज इजियर इन MIDI. देखिए एक सिंगर है, लेट्स से आतिफ, अब वो गाना गा रहा है, उसने गाना गाया इज सिंगिंग द सॉन्ग. अब बच्चों डायरेक्टली अगर आपका ये पैटर्न बाइनरी के अंदर है, अब आप लोगों ने ऑब्जर्व करा होगा कि वो गाना गा ही रहा होता है और पीछे से एक और साउंड स्टार्ट हो जाता है ठीक है. सो व्हाट इज दैट. तो बच्चों वो लोग कुछ भी नहीं करते, वो इसी बाइनरी पैटर्न को कॉपी पेस्ट कर देते हैं, इसी बाइनरी पैटर्न को वो एक्सटेंड कर देते हैं. तो आप लोग को बड़ा अच्छा लगता है, वो क्या सिंगर है, सॉरी टू से एक बड़ा मशहूर सिंगर है जस्टिन बीबर, वो बच्चा जो गाता है एक हमारा. तो वो क्या करता है बच्चों, ही टोटली प्लेज ऑन एडिटिंग. कोई मतलब कोई खास इसकी वो नहीं है, लेकिन ही प्लेज विद द नोट्स, ही प्लेज विद द साउंड. ठीक है, तो ये भी बड़ी आप लोग की बच्चों चीजें इंपॉर्टेंट होती है. तो व्हेन द डाटा इज ऑलरेडी इन MIDI फॉर्मेट तो आपकी एडिटिंग जो है वो बहुत इजी हो जाती है, बिकॉज डाटा डायरेक्टली क्या है बाइनरी फॉर्मेट के अंदर है. आपको उसको बड़ा करना है, एक्सटेंड करना है, रेप्लिकेट करना है, डुप्लीकेट करना है, वट एवर यू वॉन्ट टू डू, आप लोग हर चीज कर सकते हैं ऑन साउंड विद द हेल्प ऑफ द एडिटिंग स्टफ. ठीक है, तो दैट वाज ऑल अबाउट बच्चों MIDI. काफी सारी चीजें हम लोगों ने यहाँ पे नोट करी. Now let's move forward towards the last topic of this chapter,
इस चैप्टर के आखिरी टॉपिक के ऊपर चलते हैं हम लोग यहाँ पे। आखिरी टॉपिक के ऊपर चलते हैं। दिस टॉपिक इज कॉल्ड द कॉम्प्रेशन टेक्निक्स। कॉम्प्रेशन टेक्निक्स। तो बच्चों कॉम्प्रेशन क्या होता है? व्हेन वी कॉम्प्रेस आवर डेटा, हम डेटा को कॉम्प्रेस करते हैं। अब कॉम्प्रेस आप लोगों को पता ही है, इस फाइल साइज को छोटा करना कॉम्प्रेशन कहलाती है आपके पास। लेकिन सवाल ये आता है कि व्हाई वी परफॉर्म कॉम्प्रेशन, हम कॉम्प्रेशन करते क्यों हैं? एक बड़ा बेसिक सवाल हमारे पास आता है यहाँ पे कि व्हाई वी compress our data. This is the very basic question that rises over here कि हमें डेटा को कॉम्प्रेस करने की नीड क्यों होती है? तो बच्चों देयर आर मल्टीपल रीजन। द बेस्ट रीजन टू कॉम्प्रेस डेटा इज इजीली ट्रांसफर हो जाए आप लोग का, इजीली ट्रांसफर ओवर नेटवर्क या फिर इंटरनेट। फर्दर मोर amount of data can be stored at a given memory। ठीक है, तो आप लोग ज्यादा डेटा स्टोर कर सकते हैं, लेकिन द बेस्ट रीजन इज कि आप इजीली डेटा को ट्रांसफर कर सकते हैं बच्चों। फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ द डेटा आप लोग को कॉम्प्रेशन की नीड होती है। नाउ वी आर हैविंग टू टेक्निक्स फॉर द कॉम्प्रेशन। वन टेक्निक इज कॉल्ड लॉसी डेटा compression and the other technique is called lossless data compression. So we are having two techniques of compression. One technique is called lossy data compression and the other technique is called lossless data compression. Now we need to see the differences between both the techniques. हमें यहाँ पे differences देखने between both the techniques. So let's see. Lossless data compression, and let's compare this with lossy data compression. तो बच्चों लॉसलेस, देखिए कंप्यूटर साइंस की सबसे ज्यादा ब्यूटी क्या है आपके पास? द ब्यूटी ऑफ कंप्यूटर साइंस इज कि जो आपका वर्ड होता है ना, वही उसका काम भी होता है। सर क्या मतलब? अब देखिए आपका वर्ड है लॉसलेस, मतलब डेटा आपका लॉस नहीं होगा, सिंपल। और यहाँ पे वर्ड क्या है आपका? लॉसी, मतलब डेटा लॉस हो सकता है। सो बच्चों व्हेन वी आर डीलिंग विद द लॉसलेस डेटा कॉम्प्रेशन, तो इसके अंदर क्या होता है आपके पास? नो लॉस इन डेटा, ओरिजिनल फाइल is retained
आफ्टर decompression, जब आप decompress करते हो अपनी फाइल को तो आपकी ओरिजिनल फाइल मिल जाती है और डाटा के अंदर कोई लॉस नहीं होता एंड फर्दर नो लॉस इन क्वालिटी ऑफ द डाटा। तो क्वालिटी भी आपकी सेम रहती है। बट when we are talking about the lossy data compression बच्चों, so over here we have loss in data, original file cannot be retained, loss in quality। आपकी क्वालिटी भी क्या होती है, यू आर हैविंग अ लॉस इन क्वालिटी। नाउ वन मोर डिफरेंस, लॉसलेस के अंदर आप लोग मैक्सिमम कॉम्प्रेस कर सकते हैं, मैक्सिमम 50% तक आप लोग फाइल को कॉम्प्रेस कर सकते हो बच्चों लॉसलेस के अंदर। एंड व्हेन इट कम्स टू द लॉसी, तो मैक्सिमम 90% तक आप फाइल को कॉम्प्रेस कर सकते हैं व्हेन यू आर डीलिंग विद द लॉसी डाटा कॉम्प्रेशन। फर्दर यू शुड नो, यहाँ पे एक और बात आप लोग को पता होनी चाहिए, लॉसलेस डाटा कॉम्प्रेशन अप्लाई किया जाता है, जज़ाकल्लाह अकरम भाई, अप्लाई ऑन टेक्स्ट एंड इमेजेस। तो लॉसलेस हम लोग बच्चों कहां कहां अप्लाई कर सकते हैं, टेक्स्ट के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं और इमेजेस के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। बट व्हेन इट कम्स टू द लॉसी डाटा कॉम्प्रेशन, तो यू कैन अप्लाई ऑन इमेजेस, साउंड एंड वीडियोस। तो इमेजेस, साउंड और वीडियोस के ऊपर आप लोग अप्लाई कर सकते हैं अपनी टेक्निक, दैट इज द लॉसी डाटा कॉम्प्रेशन। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। अब देखो बच्चों, कोई ना कोई टेक्निक तो यूज करनी पड़ेगी ना हमें, कि जिस टेक्निक से आपका डाटा कॉम्प्रेस हो। सो लॉसलेस के अंदर जो टेक्निक हम लोग यूज करते हैं, दैट टेक्निक इज कॉल्ड टेक्निक यूज्ड टू कॉम्प्रेस डाटा इज कॉल्ड, क्या कहते हैं, रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम। रिप्लेसमेंट algorithm. So this is the technique that we use in lossless data compression. But when it comes to the lossy data compression, the technique that we use is called perceptual compression. So the technique is called perceptual compression when it comes to the lossy data compression बच्चों। अब इन टेक्निक्स को डिटेल में आप लोग को पता होना चाहिए, मेजर डिफरेंसेस है बच्चों लॉसी और लॉसलेस के दरमियान। अब इन टेक्निक्स के बारे में आप लोगों को पता होनी चाहिए, दोनों टेक्निक्स आप लोगों को बड़ी डिटेल में पता होनी चाहिए, परसेप्चुअल कॉम्प्रेशन एंड रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम दोनों। तो स्टार्टिंग विद बच्चों परसेप्चुअल कॉम्प्रेशन से स्टार्ट करते हैं यहाँ पे।
अब मेरा एक क्वेश्चन है आप लोगों से, परसेप्चुअल कॉम्प्रेशन। माय क्वेश्चन इज, जो आपका ह्यूमन ईयर होता है, इसकी लिसनिंग की क्या रेंज होती है? व्हाट इज द रेंज ऑफ ह्यूमन ईयर? मतलब लिसनिंग की इसकी रेंज होती है ना एक हर्ट्ज के अंदर, तो आई वांट टू नो द रेंज। जरा रेंज मुझे बताएं। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर्स। सो ह्यूमन ईयर की बच्चों रेंज क्या होती है लिसनिंग की? जल्दी से बता दे, कोई भी बता दे। यार आप लोग को आवाज नहीं आ रही, मेरी मेरी वॉइस भी इनविजिबल हो गई है। चले मैं हिंट देता हूँ, 20 से कहां तक होती है? तो काशा, अगर काश तुम अभी मेरे पास क्लास में होते और मैं तुम्हारा गला दबाता आके, 5 मीटर, ये क्या 5? हम कोई लेंथ, हम कोई वॉल मेजर कर रहे हैं 5 मीटर? तो फातिमा ने बच्चों हमें यहाँ पे जवाब दे दिया। थैंक यू फातिमा बेटा। तो फातिमा ने बताया कि 20 हर्ट्ज से लेके 20 के हर्ट्ज तक आपकी रेंज होती है ह्यूमन ईयर की। ठीक है, नहीं, नो नो नीड टू सॉरी, एटलीस्ट यू आंसर बच्चा, दैट्स टोटली फाइन। अच्छी बात है भाई, आंसर करना चाहिए ताकि यू डोंट नीड टू हेजिटेट व्हाइल आस्किंग एनीथिंग, कोई भी हेजिटेशन नहीं होना चाहिए। अब बच्चों एक मेरे पास साउंड की फाइल थी, द साउंड वाज 18 हर्ट्ज उस साउंड की फाइल के अंदर। तो बच्चों दिस साउंड इज यूजलेस। एक और साउंड था मेरे पास, दैट साउंड वाज 22 के हर्ट्ज। तो ये दोनों साउंड क्या है मेरे पास, दे आर यूजलेस बिकॉज ह्यूमन एयर जो है वो ये साउंड सुन ही नहीं सकता। अब मेरे पास एक और साउंड अवेलेबल था बच्चों, दैट वाज 25 हर्ट्ज, एंड वन साउंड वाज 19,500 हर्ट्ज। सो बच्चों नाउ ये साउंड आपका ह्यूमन एयर सुन सकता है बिल्कुल, लेकिन it will be very difficult for the human ear to listen to this sound. सर क्यों? बिकॉज दे आर बिल्कुल आपकी बाउंड्रीज के ऊपर है। इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर द ह्यूमंस टू लुक टू अंडरस्टैंड दिस साउंड। अब आप लोग मुझे एक और चीज बताइए, तो साउंड की बात करी हम लोगों ने, एक और चीज बताएं जरा मुझे। मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, क्या लिखा है, क्या लिखूं मैं यहाँ पे, लेट्स से क्या लिखा है मैंने यहाँ पे, जरा बताएं मुझे। एनीवन मतलब क्या लिखा है, सही है। फातिमा ने बता दिया सर आपने स्टूडेंट लिखा है, ठीक है। अब मैंने क्या लिखा है, तो नाउ बच्चों अब आप लोग नहीं बता सकते मैंने क्या लिखा है। तो बच्चों ह्यूमन आईज की भी क्या होती है, एक कैपेसिटी होती है, वो उसके बियॉन्ड कलर्स को नहीं देख सकती वो ह्यूमन आई। तो बच्चों अब आते हैं परसेप्चुअल कॉम्प्रेशन के ऊपर। तो परसेप्चुअल कॉम्प्रेशन में हम लोग क्या करते हैं, इट्स अ लॉसी डेटा compression technique in this technique in this technique we remove the bits we remove the bits that are difficult for
the humans to understand. So this is all about बच्चों पापा ने नेक्स्ट लाइन में बता दी हमने क्या लिखी थी शायद चले। तो बच्चों दिस इज ऑल अबाउट द परसेप्चुअल कॉम्प्रेशन। सर क्या है परसेप्चुअल कॉम्प्रेशन? इट्स अ लॉसी डाटा कॉम्प्रेशन टेक्निक। और इस टेक्निक के अंदर हम लोग क्या करते हैं? वी रिमूव द बिट्स दैट आर डिफिकल्ट फॉर ह्यूमंस टू अंडरस्टैंड। दैट्स इट, सिंपल। ठीक है, तो दिस इज द टेक्निक दैट वी यूज बच्चों इन परसेप्चुअल कॉम्प्रेशन। और परसेप्चुअल कॉम्प्रेशन हम लोग कहाँ कहाँ अप्लाई करते हैं? तो वी अप्लाई, अगर हम ऑडियो की बात करें तो वी अप्लाई in MP3 files. If we talk about video, so this technique is applied on MP4 files. If we talk about images, so this technique is applied on JPEG images. ठीक है, सो एक और पॉइंट आप लोगों को लॉ परसेप्चुअल कॉम्प्रेशन के बारे में पता होना चाहिए। क्वालिटी एंड फाइल साइज is decreased, but no drastic change in quality of the file। कोई बहुत ज्यादा ड्रास्टिक चेंज नहीं आता आपके पास क्वालिटी के अंदर। तो ये बात भी आप लोगों को बच्चों पता होनी चाहिए। तो हम लोगों ने आज क्या क्या देख लिया भाई अभी तक? वी टॉक्ड अबाउट MITI, we talked about compression techniques, why we compress data, we differentiate between lossless and lossy data compression, and we also talked about the perceptual compression as well। ठीक है, नाउ मूविंग फॉरवर्ड, अब बच्चों आपके पास लॉसलेस की जो टेक्निक है, दिस टेक्निक इज कॉल्ड रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम। दिस टेक्निक इज कॉल्ड रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम। अब ये मैं आप लोग को अगली क्लास में करवाऊंगा। अच्छा, अब थोड़ी सी बातें कर लेते हैं, मेरा बड़ा दिल चाह रहा है थोड़ी सी आप लोग से बातें करने का, ताकि हम लोग टाइमिंग्स वगैरह थोड़े सेट कर लें अपने। सो नाउ बच्चों, नेक्स्ट क्लास इस वीक हम लोग सिर्फ ऑनलाइन है। नेक्स्ट वीक से मैं हाइब्रिड क्लासेस लूंगा, लाइक द क्लास विल बी ऑन कैंपस एंड ऑनलाइन एज वेल। दोनों जगह आपका ऑन कैंपस, जिन बच्चों को आगे पढ़ना है तो वो ऑन कैंपस भी आ सकते हैं, और जिन बच्चों को ऑनलाइन पढ़ना है तो वो ऑनलाइन पढ़ लें, कोई नो नीड टू वरी अबाउट, तो वो ऑनलाइन भी ले सकते हैं क्लास। ठीक है, तो मैं अपनी क्लासेस हाइब्रिड कर दूंगा। फर्दर एक बात तो ये बता दूं, सेकंड बच्चों, अब आप लोग की ऑनलाइन टेस्टिंग भी स्टार्ट करूंगा, बिकॉज नाउ यू आर डन विद योर एग्जामिनेशन, यू आर फ्री। ऑल्दो आपके स्कूल में एग्जाम्स चल रहे हैं, लेकिन दिस इज द टाइम टू बर्डनाइज। आप लोग को इसी टाइम को मुझे यूटिलाइज करना है, इस टाइम में आप लोग को बर्डनाइज करना है, इस टाइम पे आप लोग को ऊपर लोड डालना है। तो हम लोग हर चैप्टर का आप लोग का जो पोर्टल है, दैट इज सॉर्ट, जो आप लोगों ने देखा हुआ है, आई होप सब बच्चों के पास एक्सेस होगा इस पोर्टल का। तो इस पोर्टल के ऊपर आप लोग की अब ऑनलाइन एग्जामिनेशन भी बच्चों क्या करवाऊंगा, मैं स्टार्ट करवाऊंगा। अभी भी देखें, दो बच्चे बैठ के पढ़ रहे हैं, मुर्तजा यूसुफ पढ़ रहे हैं और बासिल बैठ के पढ़ रहे हैं। तो आप लोग भी बैठ के जब इसके ऊपर पढ़ेंगे तो उकाशा तुम्हारे पास एक्सेस नहीं है। उकाशा तुम कौन से ASCC बहादुराबाद के हो या सिस्टम के हो? तो मुझे अपडेट कर देना बस कि कौन से उसके हो तुम। सो एक्सेस मैं प्रोवाइड कर दूंगा तुम्हें एज सुन एज पॉसिबल, बहादुराबाद ASTC। ठीक है, तो एक्सेस मुझे तुम अपना ईमेल एड्रेस ड्रॉप कर दो ग्रुप के ऊपर, व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर, सो दैट मैं तुम्हें एक्सेस प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, तो आपके पास इस पोर्टल के ऊपर ये पूरा साल आप लोग को रिकॉर्डेड लेक्चर्स का एक्सेस रहेगा, लाइक नंबर सिस्टम, डाटा ट्रांसमिशन, डाटा फॉर्मेट्स हमारे पास चल रहा है,
ये संडे वाले दिन हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा इंशाल्लाह ताला, ठीक है। और आफ्टर कंप्लीटिंग दिस चैप्टर देन वी आर गोइंग टू, अच्छा थोड़ा सा मैं आप लोगों को प्लानिंग भी बता दूं। आफ्टर कंप्लीटिंग दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू मूव, हम लोग 2 चैप्टर्स और करेंगे, लाइक लॉजिक गेट्स एंड इंटरनेट कम्युनिकेशन। उसके बाद मैं आप लोगों को पेपर 1 रुकवा दूंगा एंड आई एम गोइंग टू किक ऑफ विद पेपर 2। फिर मैं आप लोगों को पेपर 2 स्टार्ट करवा दूंगा, बिकॉज़ बच्चों पेपर 2 इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। और इस साल पेपर 2 में आप लोग की प्रोग्रामिंग इज आल्सो पार्ट ऑफ योर पेपर 2 आप लोगों का काफी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज़ प्रोग्रामिंग इज आल्सो पार्ट ऑफ योर सिलेबस, ठीक है। सो हम लोग यहाँ पे, मैं एक पॉज लूंगा आप लोग का फ्रॉम पेपर 1 आफ्टर कंप्लीटिंग 2 मोर चैप्टर्स। One will be internet communications and the other one will be the other one will be the other one will be बच्चों वॉन न्यूमन, ओ सॉरी लॉजिक गेट्स। तो ये 2 चैप्टर्स कंप्लीट करने के बाद फिर मैं आप लोगों को पेपर 2 के ऊपर मूव करूंगा, बिकॉज देखो पेपर 2 एक ऐसी चीज है जो बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं सूडो कोड्स के अंदर। इवन दो इस साल आप लोगों को प्रोग्रामिंग भी परफॉर्म करनी है, द लैंग्वेज दैट वी आर गोइंग टू कोड दैट विल बी पाइथन। तो ये सब चीजें हम लोग इंशाल्लाह कोडिंग वगैरह करने के बाद फिर हम लोग वापस से पेपर 1 के ऊपर मूव करेंगे, अपने रिमेनिंग टॉपिक्स कवर अप करेंगे एंड देन फिर हम लोग अपनी चीजों को वाइंड अप करेंगे। सो व्हाट आई एम थिंकिंग के मिड ऑफ फेब तक आप लोग का सिलेबस मैं कंप्लीट करवा दूंगा। तो आज बच्चों इसको यहीं तक होल्ड करते हैं। और फातिमा बेटा, आप जितने लेक्चर्स आपके मिस आउट हो गए तो गो थ्रू करेगा उन लेक्चर्स को, और जो आप लोगों की क्वायरीज होंगी फिर आप मुझसे वो पूछ लेगा। तो आज इसको बच्चों यहीं तक होल्ड करते हैं, इंशाल्लाह अगले सेशन में इसको आगे फर्दर कैरी ऑन करेंगे। अच्छा, अगला सेशन विल बी ऑन संडे, और आई थिंक संडे वाले हम लोग एट 3 हम लोग परफॉर्म करते हैं अपना सेशन। तो मैं आप लोगों को इन्फॉर्म कर दूंगा टाइमिंग्स ऑन द ग्रुप, ठीक है। तो आज यहीं तक होल्ड करते हैं, अगले सेशन में इंशाल्लाह इसको आगे फर्दर कैरी ऑन करेंगे। थैंक यू एवरीवन, अल्लाह हाफिज, टेक केयर, बाय बाय।